سویرے سحری کے وقت اٹھ کے میڈیا کے جو ایک پلر ہے ریاست کا، اس کی ذمہ داریوں کو اور اس کے سٹیٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے خود محنت کر کے صبح وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کووڈ-19، کرونا وائرس، رمضان اور عید المبارک کے تناظر میں آج ان کے لیے جو تھوڑا سا کردار ہم نے ادا کیا ہے، اس کے لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، پنجاب حکومت اور خصوصاً ملک کاظم صاحب کا شکر گزار ہوں۔ باقی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں کل قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب 2 مہینے کوارنٹائن میں رہنے کے بعد اچانک ہی ایک ٹی وی چینل پہ نمودار ہوئے اور اپنی ایک چنی منی سی خواہش رکھی کہ جناب اس ملک کے موجودہ مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں۔ میں صاحب بہادر کی اس چنی منی سی خواہش سننے کے بعد میرا بے ساختہ جی چاہا کہ ماں صدقے جائے اور پیو باری جائے ان کے اوپر۔ ان کی یہ خواہش کے حوالے سے میں اتنی بات کروں گا کہ شہباز شریف صاحب، انتخابات تو انشاءاللہ سپتمبر میں 2023 سپتمبر میں اگست کے اینڈ میں ٹینیور پورا ہوگا اور دسمبر 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ یہ تو ہے طے شدہ شیڈیول۔ اب جہاں تک آپ کی خواہش ہے تو وہ جو چنی منی خواہش ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارماں ہی کم نکلے کہ مزداق، وہ خواہش کوٹ لکھپت جیل میں یا نیب کی حوالات میں پوری ہو سکتی ہے نئے انتخابات کی۔ اس میں آپ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بن جائیں اور اپنے بچے شہباز شریف کو، آپ حمزہ شہباز کو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کینڈیڈیٹ بنا دیں۔ وہ کوٹ لکھپت جیل یا ڈیالہ جیل یا نیب کی حوالات میں کوئی الیکشن ہو تو شاید آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی نئے انتخابات کی، ورنہ جو انتخابات ہیں وہ نومبر دسمبر 2023 میں ہی ہوں گے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں حیران ہوں، صاحب بہادر میڈیا پہ آئے اور آ کے خواہش کا کیا اظہار کیا۔ اگر 2008 سے لے کے 2013 تک اعلیٰ اور عرفہ ڈاکوں کے اوپر مبنی حکومت مدت پوری کر سکتی ہے، 2008 سے 2013 تک اعلیٰ نسل کے ڈاکے مارے گئے سرکار کی چھتری تلے، اعلیٰ نسل کے، عرفہ نسل کے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے معاملات حکومت بدنام کر کے جن رکھ دیا جن لوگوں نے، وہ 5 سال پورے کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں، وہ ٹھیک۔ اگلے 2013 سے لے کے 2018 تک وہ ڈاکو پلس وائٹ کالر کرمنل، وائٹ کالر چور، جن کے متعلق انٹرنیشنل جرائد، انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل اخبارات اور عالمی میڈیا ہر ہفتے ہر مہینے ہیڈ لائن لگایا کرتے تھے کہ دنیا کے ٹاپ 10 چوروں میں نواز شریف صاحب، دنیا کے ٹاپ 10 ڈاکوؤں میں شہباز شریف صاحب۔ ڈیوڈ روز کہتا تھا، برطانیہ کا صحافی، کہ کفن چور شہباز شریف صاحب۔ جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ملک لوٹ کے کھا گئے، دیوالیہ کر دیا، 95-96 ارب ڈالر کا قرضہ لاد دیا، ریاستی اداروں کو پوری دنیا کے اندر مذاق بنا دیا۔ پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیگم صفدر اعوان کی قیادت میں میڈیا سیل بنا کے سارا دن کلبھوشن سنگھ یادیو اور نریندر مودی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سارا دن ریاستی اداروں کے خلاف بھیانک اور غلیظ جنگ لڑی جاتی تھی۔ وہ 5 سال پورے کر لیں، وہ ٹھیک، لیکن وہ وزیر اعظم عمران خان، وہ حکومت تحریک انصاف کی جو ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھولنے لگی ہوئی ہے، جو پاکستان کی اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچا چکی ہے، جو عمران خان صاحب پوری دنیا کے اندر وزیر اعظم پاکستان تو مانے جانے جا رہے ہیں اس وقت، لیکن اس
वजीर आजम बनने से पहले भी पूरी दुनिया के यूरोपीय ममालिक से लेकर अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर, उनके रिमोट एरियाज के अंदर, उनके देहातों के अंदर भी अगर पाकिस्तान की पहचान थी तो वो इमरान खान साहब के नाम पे थी। उस इमरान खान साहब की हुकूमत कि जिनकी आज भी कोरोना वायरस के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से जो जिद्दोजहद है, मैं आज ये इंकशाफ कर रहा हूं कि जब कोविड-19 का वायरस आया इस खत्ते के अंदर, मैं डेली इंडियन चैनल्स के ऊपर नजर रखने वाला आदमी हूं। आप यकीन जाने आज से 3 महीने पहले मुल्क दुश्मन ताकतें और इंडिया और इंडियन मीडिया और इंडियन रॉ वो सारा दिन प्रोपेगेंडा करते थे कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी कमजोर है कि कोरोना वायरस की इस लहर के अंदर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन खराज तहसीन पेश करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को, खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री अदारों को, खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के फ्रंट फुट पे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, फौज, पुलिस, अखबार फरोश, पटवारी, महकमा माल के अफराद, हर शोबा जिंदगी के लोग जिन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में और फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फ्रॉम डे फर्स्ट से इतनी जबरदस्त पॉलिसी बनाई कि जो मुल्क दुश्मन ताकतें ये समझती थी कि गुर्बत के मारे इस कोरोना वायरस की आड़ में मुल्क के अंदर करोड़ों लोग घरों से बाहर निकल आएंगे, गुर्बत से, भूख से, अफलास से, बेरोजगारी से, जिनके जहन में प्लान ये था, जो सारा दिन उनका मीडिया, इंडियन मीडिया सारा दिन कवरेज कर रहा था उन दिनों, आज से 2-2.5 महीने पहले, हमारी इकॉनमी के फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करके, ऊपर नीचे करके, झूठ सच बता के कि ये इकॉनमी सर्वाइव ही नहीं कर सकती कोरोना वायरस की जनाब इस जंग को। लेकिन कुर्बान जाऊं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पे कि जिन्होंने पहले दिन से ऐसी पॉलिसीज रखी, लॉकडाउन से लेके, प्रिवेंशन मेजर से लेके, प्रिवेंटिव मेजर से लेके, रिलीफ मेजर से लेके, और अब इस वक्त जो है बहाली के जितने मेजर्स हैं उन तक ऐसी पॉलिसी थी कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई लॉलेसनेस आपको नजर नहीं आ रही। आज पाकिस्तान के अंदर कोई सिविल नाफरमानी का माहौल नजर नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में 100% ऑनेस्टी के साथ, 100% डेडिकेशन के साथ, 100% इमोशंस के साथ, 100% एंथुसिस्टिक होके, 100% पेट्रियाटिक होके, 100% गरीब आवाम की इज्जत, वकार, जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की मोहब्बत से सरशार होके वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस अंदाज से पिछले 3 महीनों के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स और रिलीफ मेजर्स किए, और खसूसन जो रिलीफ एहसास कैश प्रोग्राम सबसे बड़ा, 1% भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। किसी एमएलए एमपी को नहीं पता, किसी वजीर बशीर को नहीं पता कि उसके हलके के अंदर किस किस गरीब को जाना, किस किस अंदाज से जाओ मैसेज जा रहा है, और वो आके जनाब अपने 12,000 से लेके और अपने उसके अलावा जितने इंसाफ इमदाद प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में शुरू इस वक्त चल रहा है, और उससे पहले ज़कात और बैतुल माल की मद से किस खूबसूरती के साथ कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। कोई ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई का गरीब है तो उसको एहसास कैश प्रोग्राम में से पैसे मिलेंगे, नून लीग से ताल्लुक रखने वाला अगर कोई गरीब है तो उसको नहीं मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला तो उसको नहीं मिलेंगे। किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और फिर पॉलिटिकली सारी दुनिया ने देखा, सिंध के जिसके अंदर पीटीआई की हुकूमत नहीं है और हमारे मुखालफीन की हुकूमत है, सबसे ज्यादा एहसास कैश प्रोग्राम में माली तौर पे फैसिलिटेशन आवाम को सिंध के अंदर की गई। यह है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन। किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल पार्शलिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म आपको नजर नहीं आई। ये
वजीर आजम इमरान खान साहब की सोच और विल थी। तो जो वजीर आजम इमरान खान साहब और जो पीटीआई की हुकूमत इतनी खूबसूरती के साथ सारे मामला चला रही हो, उसको आप कहें कि जनाब हुकूमत खत्म करे और नए इंतखाबात कराए, बिल्ली के खाद में छिछड़े। ये उल्लुओं की बहिश्त में और अहमकों की जन्नत में रहने के मज़दाक है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप तो अपने आप को खादमे आला कहते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने आपको बुज़दिल आला साबित किया है। 2.5 महीने हो गए हैं कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, और दावा करके आए थे लंदन से कि जनाब मैं जा रहा हूं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कोरोना वायरस की जंग लड़ने, और साथ वो दिल की बात भी लबों पे आ गई, सच्ची बात भी लबों पे आ गई कि जनाब आज शाम को आखिरी फ्लाइट आ रही है लंदन से। तो मैंने कहा अगर मैं ना गया तो फिर मुझे इधर रहना पड़ जाएगा, और लंदन में कुछ कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा था तो इनको डर लगा हुआ था कि कोरोना वायरस इनको जफ्फी लगा ले। तो वहां से डर के भागे और यहां का ऐलान किया कि मैं आ रहा हूं कोरोना वायरस की जंग 22 करोड़ पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए। 22 करोड़ पाकिस्तानी, मैं आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के जरिए से 22 करोड़ पाकिस्तानियों से पूछता हूं, मुझे बताएं पाकिस्तान के 110 या 116 अजला है, ये हजरत मोहतरम कायदे हस्ब इख्तिलाफ है। कायदे हस्ब इख्तिलाफ करोड़ों रुपया साल का उसके ऊपर सरकार का लगता है, रियासत का लगता है। उसकी फैसिलिटीज, उसकी लग्जरीज, उसकी सैलरी, उसके प्रोटोकॉल, उसकी रहाइश, उसके प्रिविलेजेस एंड पर्क्स, अब सरकार का करोड़ों रुपए आप साल का ले रहे हैं, और वजीर आजम के बाद दूसरे नंबर के ऊपर कायदे हस्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर अहमियत और हैसियत होती है। मुझे दिल पे हाथ रख के आप भी जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों से भी पूछूंगा, मुझे कायदे हस्ब इख्तिलाफ हजरत मोहतरम बुज़दिल आला शहबाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान के किसी जिले का विजिट करते हुए आपको नजर आए पिछले 2 महीनों में? किसी एक जिले का, किसी एक तहसील का, किसी एक शहर का, किसी एक बस्ती का, किसी एक गांव का, किसी एक मोहल्ले का? जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। बढ़ के सुने इनकी, अपने आप को अफलातून साबित करने की कोशिश करते हैं। आगे जो फ्रंट मैन रखे हुए हैं, कोई वो अंडों वाली सरकार है, अंडों के जरिए से आरती उतरवाती है, और जनाब सारा दिन आके इमरान खान साहब और पीटीआई के ऊपर अपने कायद को जनाब खुश करने के लिए उल्टी सीधी जनाब तनकीद कर रही है। एक वो एलएनजी वाली सरकार है, पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक करोड़ों अरबों खरबों डॉलर की लूट मार के अंदर इन्वॉल्व, और वो जनाब आके अपने कायद को खुश करने के लिए जनाब वो सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब पे तनकीद करना शुरू हो जाएंगे। मैं नून लीग के कायदीन को कहूंगा कि बताओ तुम्हारा लीडर जो कायदे हस्ब इख्तिलाफ है, उसने कायदे हस्ब इख्तिलाफ की हैसियत से, कायदे हस्ब इख्तिलाफ एक सरकारी ओहदा है, कायदे हस्ब इख्तिलाफ एक सरकारी ओहदा है, मुझे बताया जाए कि इस कायदे हस्ब इख्तिलाफ ने कोरोना वायरस की जंग के अंदर क्या किरदार अदा किया। मुझे याद आ गया, इन्होंने 90s के एंड में एक कैंपेन स्टार्ट की थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, जिसका आज तक नहीं पता चला कि जो अरबों रुपए नवाज शरीफ साहब ने लिए थे अवाम से, अवाम ने अपनी कोटा कलेजी तक उसमें दे दी थी, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि वो किधर गए पैसे। तो इसी नून लीग की मर्कजी क़यादत में से एक फर्द था, उससे एक सहाफी ने पूछा उन दिनों, लोग जनाब अपनी जेवर घर के बर्तन तक लोगों ने निछावर कर दिए थे मुल्क को कर्ज से बचाने के लिए, इनके लिए। तो एक लीडर से इनके नून लीग से पूछा कि जनाब आपने कर्ज उतारो मुल्क संवारो में क्या दिया? तो वो फरमाते हैं मैंने 2 अखबारी स्टेटमेंट्स दी हैं, 2 अखबारी बयान दिए हैं इसके हक में। एग्जैक्टली पाकिस्तान का मौजूदा कायदे हस्ब इख्तिलाफ ड्रामाबाजी करने में माहिर, ड्रामाबाजी करने में इंतहाई शातिर, वो एक्सपोज हो गया कि घर से बाहर नहीं निकले, और मैं उसकी इंतहाई मजम्मत करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि अब नून लीग के कायदीन से लेके वर्कर्स, मैं कहता हूं नजरें चुराते और छुपाते फिरते हैं जब वो कोरोना वायरस के हवाले से अपने कायद का जो किरदार देखते हैं। तो जनाबे वाला शहबाज शरीफ साहब इंतखाब दिसंबर 2023 में होंगे, अपनी इस चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश को अपने दिल में लेके रखें, और जो आपने नाअहली, गफलत, ज़ोफ़े अरादा, कम हिम्मती इस पूरे कोरोना वायरस के इशू के अंदर दिखाई है,
اس پہ توبہ طائب ہو. ابھی بھی اللہ پاک نے آپ کو وقت دیا ہے اور آپ میدان عمل میں آئے. آخری چیز اس کے بعد جو ہے نا ایک دو سوال جو ہے وہ صحافیوں میں سے بھی میں لوں گا. میں شہباز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا کہ شہزاد اکبر صاحب پچھلے کئی ماہ سے آپ سے چند سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ نے بھینسوں کے اوپر ڈال دیا کہ یہ جو اربوں خربوں پہ میں نے کمائے ہیں یہ بھینسوں کے دودھ سے کمائے ہیں. اب اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں؟ ساری دنیا تبصرہ کر چکی ہے، سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا میں، تجزیہ نگار بھی اور اینکر حضرات بھی، اپنے بھی اور مخالف بھی. میں پوچھوں گا کہ نثار گل اور مسرور نامی جو افراد تھے جنہیں گریڈ 20 کا آپ نے اپنے گھر کے ذاتی ملازم تھے، جن کو گریڈ 20 کا آپ نے افسر سی ایم سیکٹریٹ میں رکھا ہوا تھا، سی ایم سیکٹریٹ 8 کلب کے اندر، آپ نے ان کو اپنا 20واں گریڈ دیا ہوا تھا. ان کا کام صرف یہ تھا کہ پنجاب کے 36 اضلاع میں سے ڈیلی بیسس کے اوپر جو کروڑوں روپے کی کرپشن اور برائی ہوتی تھی نا سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور شعبوں میں، وہ ان کے فرنٹ مین لے کے آتے تھے، کیش بوائے آ کے جناب ان دو